में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज नंबर वन पेट काली है आज भी नंबर वन, आंखों पे अंधेरा चाय हुआ है, लाइट नहीं है, आटा नहीं है। আটার দাম বাড়ছে, অনিয়ন দাম বাড়ছে, আমার নাম্বার নইতে চাই লল। अगर आप হ্যালো গাইস, নমস্কার ও নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম এন্ড নবুদ্দায়, দিস ইজ সেতু এন্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস, তোমরা একটাই জিজ্ঞেস করছো যে ব্রো হোয়ার ইউ ফ্রম, হোয়াটস ইউর নেম, আর ইউ হিন্দু আর মুসলিম? লিসেন, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, অলওয়েজ টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম, আর মাই নেম ইজ সেতু সরকার অ্যান্ড আই এম আ হিন্দু। ওকে, তো গাইস কে কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, কারণ কোথাওতে বলতো সেটা আমার জানার রাইট আছে, বিকজ ইউ আর মাই ফ্যামিলি মেম্বার। অল টাইম অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাদের। তো আজকে বেশি সময় নিব না, কারণ ভিডিওটা একটু বড়। তার আগে একটা কথাই বলি, ইফ ইউ নিউ হ্যার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ যাও। এখানে হচ্ছে আমি ডেইলি ব্লগের মতো আপলোড করি। বাংলাদেশি আর একজন হিন্দু, তার জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন মন্দিরে যাই আমি, সেখানে ব্লগ তৈরি করি, যেটা আমি আমার ব্লগ চ্যানেলে আপলোড করি। ইন রিসেন্ট সরস্বতী পুজো নিয়ে একটা ব্লগ করছি, তোমরা যাও দেখো, আর খুব ভালো লাগবে আশা করি। শুধু হিন্দুদের জন্যই বলতেছি না গাইজ, সব কিছুই দেখাই, বই মেলা বলো। আমি স্পেশালি সবাইকে রেসপেক্ট করি, সব রিলিজিয়ান যারা রয়েছেন সবাইকে রেসপেক্ট করি, ভালোবাসি। আমার ওই রকম বিচার নাই। দিন শেষে উই আর হিউম্যান বিং, ঠিক আছে? সো কখনোই কম্পেয়ার করি না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার উইথ এনি রিলিজিয়ান। তো সবাই আমরা ভাই ভাই। বেসিক্যালি দিস ভিডিও আই হ্যাভ টেকেন ফ্রম পাঠান ভাই রিয়াকশন ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ পাঠান ভাই, আপনার ভিডিওটা আমি ইউজ করেছি এবং আপনার পারমিশন নিয়েছি, তো থ্যাংক ইউ ব্রো। আমার অনেক ভালো লাগে আপনার রিয়াকশনটা। আমি জানি আপনি বাংলা বুঝতে পারতেছেন না, তাও কিছু করার নাই, বিকজ সমস্যা হয়েছে কি, আমি হিন্দি বুঝতে পারি বাট সঠিক বলতে পারি না, ঠিক আছে? আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আই ক্যান টক প্রপারলি হিন্দি। তো চলো শুরু করি, অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল পাঠান ভাই, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করি, লেটস স্টার্ট ইট। इंडिया चाहे तो घुस के आपके 2 घंटे में इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा गाड़ दे भाई। আচ্ছা, इंडिया चाहे तो 2 घंटे में इस्लामाबाद पर इंडिया का झंडा गाड़ दे, और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई, हम तो तब भी बोल रहे थे जब तालिबान नहीं थे, जब कोई भी नहीं था। हम तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे। আচ্ছা, अगर बिल्कुल, अगर ये एकदम। ऐसा मसला आता है कि इंडिया And we पाकिस्तान love का कुछ all भी the होता है, time हम साथ में India. खड़े हैं। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। तो हेलो दोस्तों, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ जो है वो अलग रखे थे। আচ্ছা, तो कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों कि इंडिया ने अपने बजट में से, यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है, अभी नहीं, अच्छा। कुछ दिन पहले। ओके। लेकिन दोस्तों इस चीज को लेकर हमारे पड़ोसियों के अंदर काफी आग लगी हुई है। आग लगी हुई। थोड़ा वीडियो देखते हैं दोस्तों, हाशी देखो, पड़ोसी क्या स्माइल, बोलते हैं अच्छा। इस 200 करोड़ पे। फिर करते हैं बात। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान को। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया के इसके पीछे क्या मकासद है, क्या वजह है कि इंडिया का रोज बरोज झुकाव जो है वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए अच्छा। चलिए हमारे साथ। हाँ चलो। आपका नाम? हैदर। हैदर, आपको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा, असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी। क्या होतिया सोच है भाई भाई इनकी हाशी यार। देख के नहीं, हाशी है हमारे। पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को की है, इससे पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो तो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अबे जा रे किस तरह गंजे की बात टकले। मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान? टाकले। यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर, अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है। अरे जा रे टकले, और हमारे इंडिया जो को पाकिस्तान को वो मसलना इदारे हैं 1 मिनट माशाल्लाह का से, काम वो है। बजाय उन क्या चीज़ों वो पे किसी ऊपर को फोकस पैसे करने दे के, के उसको उनकी अपना अपनी काम लड़ाई नहीं करवाएंगे? इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को,
ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट देखो भाई इनकी गंदी सब सोचा सोचे, है। देखो भाई। पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको, पता ही है मकासद यही है। आपको पता है इंडिया का भी जो भाई है ये वो देखो भाई, पाकिस्तान का ये या लोग सोचते हैं कि अफगानिस्तान ये लोग मुसलमानों जिस को तरह दोस्त हो करते हैं सकता ना, है, ये समझते हैं कि मकासद पूरी कुछ और ही दुनिया है। उसी तरह वो है, यही सबको है कि पैसे दे के पाकिस्तान दहशत को गर्दियां करवाओ। हाँ अगर ये सब सारे समझ मसाइल थे और एरकम ये है सब ना। हमें पता था तो हमने फिर अपनी अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके हाँ। आने से ये हालात ख़राब हुए, सबको पता है। और इसके पीछे सारा अमेरिका है। जी बिल्कुल अच्छा। ऐसे। क्या वजह है हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। आपकी स्टैब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। हमारा जो जनरल तैयार होता है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान को सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे हमारा मसाया ममालिक अफगानिस्तान। जब मेरे घर से बैठ कर बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी? तो आप इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया। रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ भी देख भी लो गलत भाई, किया था। वही बात जो हम अमेरिका के 5 साथ साल भी से कभी बोल गलत रहे किया। थे। हाँ तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर से अपने अरूज पर पहुंच गई है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें होती नजर आ रही हैं। तो फिर ऐसी जब लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होंगे दोबारा से दहशतगर्दी। हालांकि वो वार्न किया था केपी की पुलिस ने कि दहशतगर्दी यहाँ से दोबारा आ रही है, लेकिन उधर फोकस नहीं किया लोगों ने। ये अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की तो पुलिस जो है वो खुद इस वक्त अब जो है तहफ्फुज़ मांग रही है, वो घबराई पड़ी है कि हमें जो है इन लोगों से बचाया जाए। आए दिन केपीके के पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, वार्न करना ना। सारी पावर तो जिनके पास आपको पता ही है, उनके पास तो वसाइल ही नहीं है। वसाइल तो फौज के पास है। अच्छा जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको चाहिए ना इसको कंट्रोल करे। दोबारा से दहशतगर्दी आ रही है, ये अपनी जंग जो सियासी जंग है ये खत्म करेंगे, पाकिस्तान को सोचेंगे, फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। ये इंडिया ने हर मुल्क के साथ बना कर रखी हुई है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो। हमने मुस्लिम कट्टी कंट्री हो की हुई गैर हर मुस्लिम जगह, कंट्रियों ये के साथ बोलो। बिगाड़ी हुई है, हर जगह पंगे लिए हुए हैं। बिगाड़ी इसलिए हुई है ना, देखे ना, हम वो खुददार कौम बन नहीं सके। वो एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, एटमी ताकत भी माशी भी है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में आगे है। भिखारी वो हमारे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हम तो भिखारी है बोल रहे हैं। भिखारी कंट्री जब राइट भिखारी होंगे ভাই भिखारी এর को कोई वैल्यू नहीं। প্রধানমন্ত্রী सर, বানাও आपका পাকিস্তানের राणा अच्छा वकास। सर इस वक्त जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है और ये पहली दफ़ा नहीं है। इंडिया काफ़ी अरसे से इंडिया जो है अफगानिस्तान को है डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं। और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। अच्छा हम लोग जो है ना बस समझ ले जो भी हैं हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीजों की फिक्र नहीं बेगैरत है, ये बोलो ना भाई साहब साहब। उन्होंने 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर रहा है जी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब हाँ। इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप। मैं बताते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मस्त बोल रहा है भाई, इसका मकसद है कि हम पाकिस्तानी बड़े बेगैरत हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 हैं भाई? नंबर नंबर 1 राइट पेट राइट काली है, आज भी नंबर 1। आंखों पे अंधेरा चाय हुआ है, लाइट नहीं है, आटा नहीं চায় है। চা খাইতে কম বলছে, আটার দাম বাড়ছে, অনিয়ন দাম বাড়ছে, আবার নাম্বারও নইতে চায় अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो?
आपको पता है केपीके में वहाँ की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब हमारे मुहाफ़िज़ ही महसूर हो जाएंगे, जब हमारे मुहाफ़िज़ ही तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? भाई मसला भला क्या है कि अगर मैं अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार रखता हूँ ना, और हाँ। चौकीदार जब उठ के मेरे ऊपर ही गोलियां मारेगा ना, तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये मसले मसाइल है। जब पुलिस बेचारी उठ के खुद कह रही है कि यार हमें बचाओ, यार हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, और बंदा जो है वो पुलिस के कपड़ों में आके वहाँ पे सारा काम करके चला गया, और इतना सिक्योर एरिया, यार इतना सिक्योर एरिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम किधर हैं भाई? हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है वो हमारे टैक्स से हुए अय्याशियां कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छे सलूक रखो, ठीक है? कि ये नहीं कि हर वक्त जंग। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। तो भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले, ठीक है? हम लोग राइट सिर्फ जो है ना बढ़ के राइट मार रहे हैं, उनको पता है आवाम इसी से खुश हो जाती है, और लोगों को जो है ना वो चूना दो, लोगों को लॉलीपॉप दो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ये बातें जो है ना बड़ी डीप हैं, बड़ी यही बात लंबी जब चौड़ी मैं बातें करता हैं हूँ ये वही बातें। मेरे दिल की बात बोल रहा है अफगानिस्तान ये। के साथ রাইট हमारे রাইট अच्छे সেম खासे আমারও ताल्लुकात थे তো जो হিন্দিতে हमने खुद বলতে खराब পারতেছি कर না दिए। বাট और আমি বুঝতে अगर अब পারছি इंडिया उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी इंडिया ही उनके काम आया था, ठीक है? अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, तो हम जो है सब यही बोल रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। बातें भला क्या है? अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री है। हाँ जब मैं हूं ना, मेरा भाई मुसलमान है, जब वो मेरा भाई तीसरे बंदे को पैसे देगा ना कि यार इसके घर के ऊपर बम गिराओ, तो मैं अपने भाई को क्या कहूंगा? कि मेरा भाई उठ के पैसा लेके, अमेरिका से पैसा लेके जो है ना वो कह रहा है जी कि इनके ऊपर बम गिराओ, इनके ऊपर जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, ये मेरे रोड खुले हमें ले जाओ यार, जो दिल करता है करते रहो। तो आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई मेरे पे एतबार करेगा दोबारा? वो तो यही कहेगा कि यार मैं किसी अपने दोस्त के साथ ताउन करूं, और दोस्त उसका इंडिया। उस मुश्किल वक्त में इंडिया उसके साथ है, अब इंडिया उसके साथ ताउन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने खुद बर्बाद की हैं। और अब आप देखें कि अफगानिस्तान के मुआशी हालात देख ले, पाकिस्तान से बेहतर हैं। हमारे हालात आप देखें किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आटे चावल अब गंदम इनकी के रेट आंखें देखें, खुल डॉलर रही के है रेट थोड़ी देखें, थोड़ी। पेट्रोल जो है वो हाँ हमारे हाँ पास खत्म हो गया है, ठीक है? हमसे तो बेहतर है भाई अफगानिस्तान, और साथ में वो दूसरा बांग्लादेश। बहुत बेहतर है। आप डॉलर का रेट देख लें वहाँ पे, बांग्लादेश में डॉलर का रेट देख लें, इंडिया में देख लें। अफगानिस्तान जिसके अंदर रही हमेशा जंग ही रही है, और वो बेचारे, लेकिन उनके अंदर गैरत है ना। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है। अच्छा सर, अच्छा इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया की तरफ से जो है काफ़ी सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान को, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर इंडिया वहाँ पर काम भी कर रहा है। क्या कहेंगे आप, इंडिया इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? लेकिन पहले जो इनके जो गवर्नमेंट पहले रही है शुमाली इत्तेहाद, और उनकी जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज बिग कंपेनियनशिप उनकी रही है, मतलब अफ़गानिस्तान के साथ। कोर्स वो तो नो डाउट किसी को ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो किस तरीके से वो करते रहे हैं, और वो उनके बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलते रहे हैं। रिसेंटली जो ट्विस्ट हुआ है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर जो हुआ है 2021 में, उसके बाद जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। आई मीन एज अ कॉमन पर्सन फॉर मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक इनको ये समझते थे कि जो ये हम तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इन अ पाकिस्तान इंटरेस्ट में होती है। लेकिन इनका सडन शिफ्ट हुआ है विद द न्यू रिसेंट जो रजीम आया उसकी वजह से, उसका एक डिफरेंट, मतलब द पावर पॉलिटिक्स और डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। सर, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान आज हमारे खिलाफ है तो ये हमारा ही किया धरा है ना। अगर एक ब्रदर कंट्री दूसरी ब्रदर कंट्री के खिलाफ जा रही है या उन्हें पसंद नहीं कर रही, तो इसके पीछे समहाउ किसी एक की गलती तो है ना। बिल्कुल इसी तरह ही है।
मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब आप ये देखें कि इकनॉमिकली हम बिल्कुल हमारा बुरा हाल हुआ है इस वक्त, राइट। और वहाँ पे आप चले जाएं तो मैं भी कल देख रहा था कि अफगानी जो करेंसी है वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, राइट। राइट कुछ इसकी वजह प्रीवियस डॉलर भी है, लेकिन उनका जो उसके बाद डॉलर के जाने के बाद भी वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन के मतलब वो जो इंडिया बहुत ज़्यादा है, पिछली गवर्नमेंट में तो उनके साथ होना ही होना था। उनके बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कष्ट लगेगा चल रहे थे, इसकी उनके बोलूंगा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स वहाँ आए हुए थे, पॉलिटिकल तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे थे। जो प्रोजेक्ट्स उनके बहुत सारे ऑन गोइंग थे, तो उन्होंने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि भाई हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है, राइट। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि भाई एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, 2-3 डैम बन रहे हैं, तो मैं उनको कहूँ जी कि नहीं जी आप हमें अच्छे नहीं लगते और आप चले जाएं। तो इस तरह की बात तो नहीं है ना। उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप किया। दूसरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है और ऑफ़र की हैं उन्होंने। सो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा अपना असर रसूख रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऑफ कोर्स हेल्प आउट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मसले बड़े हैं कि हम फाइनेंशियल शायद इतना सॉलिड नहीं कर सकते। सर एक चीज़ हमेशा पाकिस्तानियों को हमने कहती हुई सुनी है कि अक्सर आपने भी सुना होगा कि अगर इंडिया इतनी सपोर्ट कर रहा है, इतनी इमदाद दे रहा है अफगानिस्तान को, इसके पीछे इंडिया के कुछ मकासद हैं। आपको क्या लगता है इंडिया के क्या मकासद होंगे अफगानिस्तान को सपोर्ट करने में, या उसको इमदाद करने में, या उसको फंडिंग करने में? देखिए इंडिया इस वक्त ग्लोबल प्लेयर है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना जितना मर्जी वो करते रहें, लेकिन द थिंग इज़ के दे आर वेरी मच विजिबल इन द वर्ल्ड स्टेज, राइट। तो उनकी जो एक दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली। जो बातें मैं पिछले 5-6 साल से मीडिया के ऊपर कर रहा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है, पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर बड़े, जो है वो, यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी তো গাইজ ভিডিওটা অনেক বড়, তো আমি নেক্সট পার্ট করে রিয়াকশান দিব। তো গাইজ কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর আমার তো খুব বরাবর ভালো লাগে পাঠান ভাইয়ের রিয়াকশান, আমি বেশি দিন না মাসখানেক হয়েছে ফলো করি, তার রিয়াকশানগুলো খুব ভালো লাগে, তো জন্য তার কাছে পারমিশন নিয়ে এক ভিডিও শুরু করছি। তো কেমন লাগছে অবশ্যই বলো, যদি চাও আরও ভিডিওতে তার যদি রিয়াকশান দিতে চাও তো আমি রিয়াক্ট দিতে পারবো, সমস্যা নাই, জাস্ট কমেন্ট করে বলো। আর কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, কারণ তোমরা আমার ভালোবাসার মানুষগুলো আমাকে সাপোর্ট করতেছো, ওই কত না কত দূর থেকে দেখতেছো, অবশ্যই সেটা আমার জানার অধিকার আছে। কোথাওতে দেখতেছো প্লিজ কমেন্ট করে জানাও কোথাওতে দেখতেছো। আর নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাইও, আর ব্লগ চ্যানেলেও যাও, ঘুরে আসো। তো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবত, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের সাথে ভালো সময় স্পেন্ড করবেন। সো টেক কেয়ার, লাভ ইউ, টাটা।